Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13-floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. मैं श्री न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो इस वक्त हम उपस्थित हुए हैं साइंस सेंटर श्री विजयपुरम में। साइंस सेंटर श्री विजयपुरम ने 1 महीने का एक समर कैंप करवाया था, समर कैंप 2025, जो कि 2 मई से शुरू हुआ था और आज उसका अंतिम दिन है, यानी 30 मई को उसका अंतिम कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। पूरे 1 महीने का कोर्स यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था, जिससे बच्चों को साइंस से रिलेटेड कई अलग अलग तरह के एड सिखाए गए। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है एरो मॉडलिंग, क्रिएटिव साइंस, फन बायोलॉजी, 3D मॉडलिंग, फन केमिस्ट्री, रोबोटॉनिक्स, रोबोट मेकिंग, ड्रोन मेकिंग। तो ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद थी। यहाँ पे बच्चों को काफी अच्छे तरीके से ट्रेन किया गया, जिसमें बच्चों ने 1 महीने ये सारी चीजों में काम किया, उन्हें बनाना सीखा, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन किया। और आज जो है बच्चे अपना मॉडल्स जो है, यहाँ के मुख्य अतिथि जो आज यहाँ आने वाले हैं, डॉक्टर अपारूप दास जी, जो कि डायरेक्टर ऑफ इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, जो यहाँ पे आज मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। हम धन्यवाद करते हैं उनका। वो यहाँ आज आने वाले और यहाँ के बच्चों को जज करने वाले, उनको मोटिवेट करने वाले कि जो 1 महीने का उन्होंने जो यहाँ पे प्रैक्टिस किया है, ट्रेनिंग किया है, ये सारी चीज़ों को लेकर। ये एक बहुत अच्छा समय था जब समर वेकेशन चल रहा था। तो साइंस सेंटर अक्सर हर साल जो है ऐसे कैंप्स करवाता रहता है। तो ये साल भी कैंप में काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, लगभग 100 से ऊपर बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट करा। तो हम आज यहाँ उपस्थित हुए ताकि यहाँ का पूरा कवरेज आपको दिखा सके कि कैसे बच्चों ने यहाँ एक्सपीरियंस गेन किया, क्या क्या नॉलेज बच्चों ने यहाँ से प्राप्त किया और कैसे कैसे मॉडल्स उन्होंने प्रिपेयर करे। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम की तरफ। Request Shri Shajan Thomas, Sir, Curator of Science Center, to welcome our chief guest. Distinguished chief guest of our day, Dr. Aparup Das, Regional Director, Indian Council of Medical Research, Sri Vijayapuram. Parents, dear students, and my colleagues at Science Center. It is a great honor to have Dr. Aparup Das, a renowned medical scientist, to be with us to grace our occasion, the valedictory function of the 1 month long holiday camp, summer holiday camp, which you all students had undergone at Science Center. I hope the camp, which had lot of new innovative modules for you, I hope the camp was very interesting and enlightening for you, and you must have got to learn a lot from this camp.
Sir, this camp was started at Science Center since its inception in the year 2004. Since 2004, we have been running this camp during the summer vacation, and there has been very good response from the students. Close to about 100 or 150 students who take part in the various modules that we had formulated for this camp. The Science Center has also provided the bus services for mobility of the students during this entire month. The 30 days long camp started from 2nd May and is culminating today, the 30th May, during which the students were imparted training in different disciplines such as aero modeling, creative science, robotic science, rocket modeling, fun chemistry, fun biology, drone making, and 3D modeling. The camp had earmarked 6 days for each subject, during which the scientific reasons, values, and principles working behind the model were explained to them. गया अब नहीं रे कटे दिल ना की कर पाएगी टूटा इश्क ही ढग बैठा सजना जा राजन 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 तू भी क्या याद रखेगा जाहिरन तेनू छोड़ दिया जा राजन 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 तू भी क्या याद रखेगा जाहिरन तेनू छोड़ दिया I really enjoyed all of them, from dissecting flowers, making working model of kidneys and lungs, creating models with POP, and watching drones fly. The closing ceremony made us proud and happy. Thank you to all the teachers, organizers, mentors, and the Science Center team for managing and arranging this much good and amazing summer camp at Science Center. Thank you. We did so many interesting topics like fun biology, creative science, robotics, and so many interesting topics that you all like. The hands-on experiments with the topics robotics, creative science, and rocket modeling was engaging and helped me understand their specific. I had an amazing experience at Science Center Odyssey Camp 2025. We participated in different things like aero modeling, fun chemistry, creative science, and robotic science. We did so many experiments like coin method, traffic lights, robotic arms, taking parachute, and glider. My favorite part was making things with my own hands and seeing them work. The teachers were super nice and helpful. They explained everything in a way that was easy to understand. I also loved all the tours that we went through. Now comes the most awaited moment, the prize distribution ceremony. After completion of each training, a feedback test was conducted and 4 students were selected as prize winners. I request the chief guest and other dignitaries to kindly come forward and do the honors with the prize winners. I will also ask Aishwarya ma'am to announce the name of our winners. Why I am saying so? Because when I entered here and straight away went there to see your performance, your models, and then your description, and I really felt mesmerized because people, very young boys, girls, their eyes are full of enthusiasm, and then they are really excited to tell what they have said. I am just a worshipper of science, and science always attracted me. And I have been attracted by science, and that is the reason why I am here.
standing before you. I remember my days when I was of your age. Now I was just thinking, sitting here, that why I became a scientist. And I remember that when I used to go to a clinician in my village, I belong from a very remote village of Odisha. And when I used to go to the doctors there, at that time they used to give some pills and then some liquid to drink and eat. So, and then once I became healthy, and then after probably 6 months, 18, 1 year, again visiting the doctor, and then he used to give me the same thing almost. And then my question at that time was that who made these medicines? I asked him one day that who actually prepares this medicine? How do you know that with this medicine I will be alright? Then he said that I don't make medicines. I only know that for this kind of symptoms, these medicines can be given. Then from that day onward, I thought myself that then the clinicians, they only, give medicines to a bunch of symptoms. They actually do not prepare medicines. So I try to understand when I grew up, when I did my after graduations, then I found out that there are a bunch of people who are known as researchers or scientists. They actually prepare the medicine. Thank you so much. God bless you. I take this opportunity to extend my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Dr. Aparup Das sir, for his gracious present and inspiring words. I extend my gracious thanks to our dignitaries present. A special thanks to all the principal, teachers, and for encouraging the students for enrolling their name in our one-month camp. I also thank all the dear students who participated actively and their parents who have supported them with the thirst of knowledge. Adding to this, I would like to thank STS department for providing the bus services for regular pickups and drops. My extend thanks to our media partner, Daily Telegram, Doordarshan, and News 24, News Andaman 24, for constant support and coverage. Last but not the least, a very heartfelt thanks to my Science Center staff whose hard work and dedication made a successful completion of Holiday Camp 2025. Once again, thank you all. Thank you, Aishwarya ma'am, for the wonderful word of thanks. Let's carry these beautiful memories with us and keep the spirit of joy, learning and friendship alive wherever we go. Thank you and have a wonderful day ahead. But at last, I have to thank you, this both anchoring who anchored this program, the Prapti and Swati, for this wonderful performance. तो अब हम बात करेंगे एजुकेशन ऑफिसर साइंस सेंटर देबोशीष पॉल जी से। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो ये 1 महीने का समर कैंप यहाँ अक्सर साइंस सेंटर श्री विजयपुरम में रखा जाता है, उसके बारे में हमारी जनता को, स्पेशली स्टूडेंट्स को और तो और उनके गार्जियंस को थोड़ा ब्रीफ करें। जय हिंद सर। ओके, नमस्कार। हर बार की तरह इस बार भी जो है हमारे विज्ञान केंद्र में ये समर वेकेशन का ये कार्यक्रम हमारा अरेंजमेंट हुआ है। इस बार करीब टोटल 8 ट्रेड में या डिसिप्लिन में हमने या बच्चों को एक वीक के लिए हमारा ये ट्रेनिंग था, जिसमें हमारा एरो मॉडलिंग, फन केमिस्ट्री, फन बायोलॉजी, रोबोटिक्स साइंस, मॉडल रॉकेटरी, क्रिएटिव साइंस, ड्रोन मेकिंग, इस तरह के कई सारे कार्यक्रम इस बार था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार की तरह से इस बार जो है हमारा 2 ट्रेनिंग जो है ऐड हुआ, हमने नए ऐड किए हैं। और जो नया जो ऐड हुआ है वो है इस बार 3D मॉडलिंग और ड्रोन मेकिंग। इस बार हमने पहले बार इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं। और इस बार हमारे बीच में बच्चे पूरे आइलैंड से ही हमें बच्चे मिले हैं, इंटर आइलैंड से भी बच्चे हमने देख रहे हैं कि जो पार्टिसिपेट के एनरोल किए हैं। और करीब 132 स्टूडेंट्स इस बार इस हॉलिडे कैंप में रजिस्टर किए हैं। हमने जो है हर हफ्ता का एक हफ्ते का ट्रेनिंग था,
और इस हफ्ते में जो बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट कराने की हमने ज़्यादा कोशिश है, बल्कि थियोरिटिकल कम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा, यही हमारा हमेशा ये रहा है। क्योंकि थियोरी तो बच्चे इंटरनेट से, स्कूल से, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल नॉलेज देना ही हमारा इस हॉलीडे कैंप का मेन मकसद रहा है। इसके अलावा हमने इस मंथ के दौरान में कई सारे डेज़ भी मनाए हैं, इंटरनेशनल और नेशनल डेज़, जैसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, और इस डेज़ को मनाए हैं। और कई सारे एक्सपोजर विज़िट भी हमने किए हैं, ताकि साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में इनको जाके देखें, वहाँ पे क्या क्या रिसर्च हो रहे हैं, कैसे कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ पे, ये सारी चीज़ों को भी एक एक्सपोजर हम देते हैं। हम तो चाहेंगे कि हमारा विज्ञान केंद्र में सिर्फ हॉलीडे कैंप ही नहीं, ईयर लॉन्ग हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारा एडवर्टाइजमेंट, हमारा जो एक्टिविटी है वो फॉलो करते रहें हमारा, और जब जब ये कार्यक्रम होते हैं तो बिल्कुल बच्चों को यहाँ पे भेजें और इसमें पार्टिसिपेट कराएं, तभी जो है बच्चे आगे बढ़ सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद सर। अब हम बात करेंगे डायरेक्टर ऑफ इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च अंडमान एंड निकोबार आइलैंड डॉक्टर अपारूप दास जी से। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो जब यहाँ पर आए तो उनको यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा, जैसे उन्होंने देखा कि यहाँ के बच्चे ने कितने अच्छे अच्छे तरह के प्रोजेक्ट्स उनके सामने रखे हैं, तो हम उनके बारे में सर से 2 शब्द जानना चाहेंगे। जय हिंद सर। मैं जैसे बोल चुका हूँ कि मैं जब पहले आया और ये जो छोटे छोटे बच्चे लोगों ने इतने अच्छे से समझाया, उतने अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करवाया, तो इससे पता लगता है कि उनके अंदर में खाली जिज्ञासा नहीं है, एंथुजियाज्म भरा हुआ है, नॉलेज भी भरी हुई है पूरे अंदर में। तो ये उनके आँखों से ना झलक दिख रहा था जिसमें पूरा भरा हुआ है कि हम कितना इंटरेस्टेड है इस चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए। और बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता रहे थे लोग, और बच्चों लोगों ने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छी तरह से किया। तो बहुत चीज़ों में, मैं तो एक बायोलॉजिस्ट हूँ, एक बायोमेडिकल साइंटिस्ट हूँ, मुझे बहुत सारे चीज़ों में, जैसे रोबोटिक्स साइंस है, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसमें तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बहुत कम आइडिया है, लेकिन मुझे भी बहुत चीज़ें यहाँ से सीखने के लिए मिला है। और मैं यही बोलूँगा इस माध्यम के थ्रू में, जो लोग विज्ञान को अपने करियर बनाना चाहते हैं वो प्लीज़ बनाए, और पिता माता जो उनके हैं उन मोटिवेट कराएं बच्चों को विज्ञान में प्रगति करने के लिए। धन्यवाद सर। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ जो 1 मंथ कोर्स थे वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे थे, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका यहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम प्राप्ति दास है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम है वीकेवी स्कूल लंबा लाइन। तो मैंने यहाँ बहुत सारे एक्सपीरियंस, मतलब जितने भी ट्रेड्स थे, 8 ट्रेड्स से, उनमें से एरो मॉडलिंग, फन केमिस्ट्री, फन विद बायोलॉजी, ड्रोन मेकिंग, बहुत सारे ट्रेड्स में मज़ा आया। और कई सारे ट्रेड्स में ये सीख मिलता है कि हमें सीखना चाहिए, हमें बनाना चाहिए, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए हेल्प हो सकता है। यहाँ पे बहुत मज़ा आया, हमने बहुत सारी जगह घूमे भी, जैसे कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उत्कृष्ट, बहुत सीखने के लिए मिला। टीचर्स हमें बहुत अच्छे से पढ़ाए हम लोग को, और हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और हम लोग बहुत कुछ बनाए, हम लोग प्रैक्टिकली बनाए और बहुत सारे आइडियाज़ मिले हम लोग को कैसे बनाना है करके। बहुत कुछ देखने को मिला, जैसे कि एरो मॉडलिंग, उसके बाद क्रिएटिव साइंस, फन बायोलॉजी और भी बहुत कुछ। आई जस्ट वांट टू टेल, मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्रिएटिव साइंस एंड फन बायोलॉजी। और आज साइंस सेंटर का आज लास्ट डे, तो मेरे को थोड़ा सा तो ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि दोस्त भी बनाए और मस्ती भी किए, थोड़ा मॉडल्स भी बनाए, साइंस भी समझे। मैं यहाँ पे आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत सारे आइडिया सीखे जो मैंने कभी नहीं सीखे। कौन सा मटेरियल डालेगा तो उसको कैसे बनाते करके हम अगर लगभग पूरा ट्रेड्स लिया था। फॉर एग्जांपल एरो मॉडलिंग, फन केमिस्ट्री, क्रिएटिविटी साइंस, रोबोटॉनिक्स, ड्रोन मेकिंग एक्सेट्रा। जब भी अवार्ड मिल रहे थे ना, मुझे आई वाज ऑलमोस्ट लूजिंग माय होप दैट आई विल नॉट गेट अ पेनी प्राइज, बट आई वाज होपिंग एंड 1% ऑफ होप I will got, and I got it. I am very happy for that. My favorite subject is science. Here I got fun biology
बायोलॉजी which is my favorite subject. ड्रोन मेकिंग ऐसा प्लेटफॉर्म इनोवेशन हब जो हम लोग को साइंस सेंटर प्रोवाइड करे है, जो कि एक नया चांस हम लोग को मतलब अंडमान का बच्चे लोग को बहुत अच्छी तरह से देता है। एंड मेरा तो यही रिकमेंड रहेगा कि बाकी सारे बच्चे लोग को भी सारा चीज़ करना चाहिए। हम लोग को बहुत मज़ा आता है सारी चीज़ में, तो हम आगे भी ये सारा चीज़ को करना चाहिए। तो यकीन नहीं था कि मुझे मिलेगा, लेकिन मुझे मिल गया आखिर में। अच्छा है, आप इधर में इनोवेशन हब में भी जा सकते हो। और बहुत सारा जो अनएक्सपेक्टेड टूर गए थे, INS उत्क्रोश में गए थे। Last year also I came and I really love this because they're creating, they're giving us so much opportunity. They're taking us to tour and many of the things and like models can you see outside. They were really fantastic and I really love to make models from my own hands. I liked it very much. All the participants were definitely fantastic. हमने अपनी रिपोर्टिंग की शुरुआत में आप लोगों को इस जो समर कैंप 2025 जो कि साइंस सेंटर में रखा गया इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, यहाँ लगभग 8 तरीके के एड डिफरेंट टाइप ऑफ एड रखे गए थे, जिसमें बच्चों ने अलग अलग तरह के कोर्सेज सीखे, उसको इम्प्लीमेंट करा अपने लाइफ में, उनसे बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें सीखी। बच्चों ने कहा कि बहुत अच्छा समय था उन्होंने जो यहाँ पर बिताया, काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिला। और समर वेकेशन, हम अक्सर कहते हैं कि समर वेकेशन एक ऐसा टाइम है जहाँ बच्चे बहुत फ्री होते हैं। यूजुअली जो डेली लाइफ होता है उसमें इम्प्लीमेंट कर कर कुछ अच्छा क्रिएटिव कर सकते हैं, जो कि उनको यहाँ से ट्रेनिंग मिली और उन्होंने ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करके काफ़ी सारे मॉडल्स भी बनाए जो कि बहुत माइंड ब्लोइंग थे। यहाँ पे अभी जो ड्रोन मेकिंग है, ये एक नया कॉन्सेप्ट भी रखा गया जो आने वाले समय में हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। जैसे जैसे हम ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अंडमान एंड निकोबार भी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, ताकि बच्चों को भी ये सारी चीज़ों में जो है वो और भी बढ़ावा दे पाए और बच्चे भी इन सारी चीज़ों को सीख कर अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर पाए। जो यहाँ के जो मुख्य अतिथि थे, डायरेक्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अंडमान एंड निकोबार आइलैंड डॉक्टर अपरूप दास जी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों को मोटिवेट किया, बताया कि कैसे उन्होंने सोचा कि उन्हें जो है एक साइंटिस्ट बनना है। और उन्होंने जितने गार्जियंस हैं उनसे भी अपील की है कि वो भी बच्चों को जो चीज़ में वो इंटरेस्टेड है वो चीज़ में उन्हें बढ़ावा दे, ताकि हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के बच्चे कभी किसी से पीछे ना रह पाए। अगर आज आप यहाँ का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, यहाँ के बच्चों का प्रेजेंटेशन देखेंगे, तो आपको खुद ये फील होगा कि हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के बच्चे कितने टैलेंटेड है। ये जो कैंप था 1 महीने का था, आज इसका अंतिम दिन था और अगले साल भी ये कैंप इसी तरह यहाँ पर रखा जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि और भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपने जो अंदर के टैलेंट है उसको और भी निखारेंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरी, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।